Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Saini. I hope you all are good. So students, today we will do rapid revision of clauses. Okay. So first of all, we'll discuss what is sentence. Okay. What is a clause, type of clauses and type of sentences. So let's start. So to understand the clauses properly, first of all, here is need to understand what is a sentence. Okay. A group of words which makes a complete sense, that is called sentence. Okay. So a sentence has two parts. Okay, sentence के two parts होते हैं. Let's understand with the help of this example. Simran is a good girl. Okay, so Simran is subject. Okay, so verb plus object, that is predicate. Okay, so two part in sentence के. Number one, object, subject and then predicate. ठीक है, verb plus object, that is predicate. Okay. Let's understand what is a clause. Okay, a clause is a part of sentence which has a subject and a predicate. ठीक है, clause क्या होता है? सेंटेंस का ही पार्ट होता है जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और अपना एक प्रेडिकेट भी होता है. ठीक है, सो क्लॉज इज अ सेंटेंस इटसेल्फ बिकॉज इट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. ठीक है, क्लॉज अपने आप में सेंटेंस ही है. ठीक है, जिसका अपना एक सब्जेक्ट भी होता है और एक प्रेडिकेट भी होता है. ओके, so let's understand with the help of example. I called Pranjal, but she gave no answer. Okay, so I called Pranjal. Okay, this is a clause. Okay, I called Pranjal, this is a clause. Okay, but she gave no answer. Okay, but she gave no answer, this is also a clause. Okay, next, clauses. There are two type of clauses mainly. Okay, independent clause and dependent clause. Okay, let's understand what is independent clause. Okay, it is also called a main clause or principal clause. ठीक है, independent clause को main clause और principal clause भी बोलते हैं. ठीक है, independent clause, let's understand what is independent clause. Okay, independent clause does not depend on any other clause for its meaning. ठीक है, independent clause अपने meaning के लिए किसी दूसरे clause पे depend नहीं करता है. Okay, let's understand what is dependent clause. Okay, so dependent clause, it is also called a subordinate clause. ठीक है, dependent clause को subordinate clause भी बोलते हैं. ठीक है, so let's understand what is subordinate clause. Okay, so subordinate clause depends on other clause for its meaning. ठीक है, so subordinate clause अपने meaning के लिए किसी दूसरे clause पे depend होता है. Okay, so example, let's understand with the help of example. I saw a girl who was singing. Okay, so I saw a girl. This is independent clause. Okay, this clause is not depend on any other clause for its meaning. I saw a girl. ठीक है, ये इसका इतना complete meaning है और ये independent clause है. Okay, who was singing. Who क्या है यहाँ पे? subordinate conjunction है. ठीक है, so who is the subordinate conjunction. अगर part of sentence क्या है, आपकी subordinate conjunction के साथ connect है. ठीक है, that is subordinate clause. ठीक है, और सबॉर्डिनेट क्लॉज का क्या होता है, अपना एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है, बट यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है. हु वॉज सिंगिंग. ठीक है, दिस इज क्या, ये सबॉर्डिनेट क्लॉज. ओके, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्लॉजेस. ओके, प्रिंसिपल क्लॉज, ओके, subordinate clause and coordinate clause. Let's understand what is principal clause. This clause has its own meaning and does not depend on any other clause for its meaning. ठीक है, तो प्रिंसिपल क्लॉज का अपना एक मीनिंग होता है. ठीक है, और ये अपनी मीनिंग के लिए किसी दूसरे क्लॉज पे डिपेंड नहीं करता है. ओके, एंड सबॉर्डिनेट क्लॉज, दिस क्लॉज इज नॉट इंडिपेंडेंट. ठीक है, तो सबॉर्डिनेट क्लॉज इंडिपेंडेंट नहीं होता है. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्लॉज फॉर इट्स मीनिंग. ठीक है, ये प्रिंसिपल क्लॉज पे अपनी मीनिंग के लिए डिपेंड करता है. ठीक है, एंड सबॉर्डिनेट क्लॉज बिगिंस विद कंजंक्शन. सबॉर्डिनेट क्लॉज की कंजंक्शन क्या होती है, लेट्स अंडरस्टैंड. As, since, before, till, while, when, if, though, although, unless, that, and WH words like what, who, where, when, how, etc. Okay, so let's understand what is coordinate clause. Okay, coordinate clause, its relation can be with principal clause and subordinate clause. ठीक है, coordinate clause की relation प्रिंसिपल क्लॉज के साथ भी हो सकता है, सबॉर्डिनेट क्लॉज के साथ भी हो सकता है. ठीक है,
सो दिस क्लॉजेस कनेक्ट विद कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। ये जो क्लॉज है कोऑर्डिनेट क्लॉज, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ कनेक्टेड होता है। ओके, सो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है? बट, एंड, एज वेल एज, येट, बोथ, नीदर नॉर, ओके, ईदर और, एक्सेट्रा। ओके, let's understand with the help of example. We know that he is not sincere in his duty, ठीक है। so we know this is independent clause, okay। so यहाँ पे क्या है? subject plus verb, अपना इसका अपना एक मीनिंग है, ठीक है। so ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल क्लॉज, ओके। दैट ही इज नॉट सिंसियर इन हिज ड्यूटी, ठीक है। सो दैट इज सबॉर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। दैट क्या है? यहाँ पे सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है। जब कोई क्लॉज सबॉर्डिनेट कंजंक्शन के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है, दैट इज सबॉर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। और ही इज नॉट सिंसियर इन हिज ड्यूटी, ठीक है, दैट ही इज नॉट सिंसियर इन हिज ड्यूटी, दैट इज कनेक्टेड विद प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। सो दिस इज, ये क्या है? डिपेंड कर रहा है किस पे? वी नो पे, ओके। सो दिस इज सबॉर्डिनेट क्लॉज, ओके। गॉड मेड हिज कंट्री, गॉड मेड द कंट्री, ओके, एंड मैन मेड द टाउन, ओके। सो गॉड मेड द कंट्री, दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज, ओके, एंड मैन मेड द टाउन, सो एंड इज द कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। जब कोई क्लॉज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ कनेक्टेड होता है, दैट इज कोऑर्डिनेट क्लॉज, ओके। सो एंड क्या है? यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। तो ये किसके साथ कनेक्टेड है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ कनेक्टेड है। सो दिस इज कोऑर्डिनेट क्लॉज। एंड गॉड मेड कंट्री एंड मैन मेड टाउन, ठीक है। मैन मेड टाउन, दिस इस रिलेशन इज विद प्रिंसिपल क्लॉज, इसका रिलेशन प्रिंसिपल क्लॉज के साथ भी है। सो दिस इज कोऑर्डिनेट क्लॉज, ओके। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। राम पास्ट बट हिज ब्रदर फेल्ड, ठीक है। So these are also example. Ram passed but his brother failed, okay. So Ram passed, this is principal clause, okay, but his brother failed, okay. So but क्या है यहाँ पे? coordinate conjunction, ठीक है। अगर कोई clause coordinate conjunction के साथ connected होता है, that means that is coordinate clause, okay. So this is coordinate clause, okay. Next, if you work hard, ठीक है, you will be successful. So if, what is if here? If is subordinate conjunction, ठीक है। जब कोई clause subordinate conjunction के साथ connected होता है, that is subordinate clause, okay. So if subordinate conjunction है, so you work hard, that is subordinate clause, okay. You will be successful, that is principal clause, ठीक है। So principal clause जरूरी नहीं है कि वो स्टार्टिंग में ही आए, ठीक है, बाद में भी हो सकता है, और स्टार्टिंग में पहले हो सकता है कि सबॉर्डिनेट क्लॉज भी हो सकता है, ठीक है। जब कोई क्लॉज सबॉर्डिनेट कंजंक्शन के साथ कनेक्टेड होता है, दैट मीन दैट इज सबॉर्डिनेट क्लॉज, ओके। और जब वो सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? जब वो किसी दूसरे क्लॉज के ऊपर, प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, दैट इज सबॉर्डिनेट क्लॉज। और प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? जिसका, जो किसी भी क्लॉज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है अपने मीनिंग के लिए, उसका अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है, दैट इज प्रिंसिपल क्लॉज, ओके। सो लेट्स अंडरस्टैंड सबॉर्डिनेट क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं, ठीक है। सो सबॉर्डिनेट क्लॉज, पार्ट ऑफ सेंटेंस विच कनेक्ट विद सबॉर्डिनेट कंजंक्शन इज कॉल्ड सबॉर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। सो पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस का वो पार्ट जो कि सबॉर्डिनेट कंजंक्शन से कनेक्टेड होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सबॉर्डिनेट क्लॉज, ओके। एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच कनेक्ट विद कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। सेंटेंस का वो पार्ट जो कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ कनेक्टेड होता है, दैट इज कोऑर्डिनेट क्लॉज, ओके। लेट्स अंडरस्टैंड काइंड्स ऑफ clause, okay, kinds of clause. So there are three kinds of clauses, okay. Noun clause, ठीक है, adjective clause and adverb clause, okay. Let's understand what is noun clause, okay. Noun clause, a clause, noun clause is that clause where is verb before relative conjunction, ठीक है, like who, which, where, that, etc, ठीक है। noun clause क्या होता है? नाउन क्लॉज वो क्लॉज होता है जहां पे कंजंक्शन से पहले वर्ब आती है, ठीक है। अगर कंजंक्शन से पहले वर्ब आती है, ठीक है, सो उसको हम क्या बोलेंगे? नाउन क्लॉज। कंजंक्शन मीन्स लाइक
WH वर्ड्स भी हो सकते हैं या फिर कोई और कंजंक्शन भी हो सकती है, ठीक है। अगर कंजंक्शन से पहले वर्ब आती है, ठीक है, सो दैट इज नाउन क्लॉज। ओके, लेट्स टेक सम एग्जांपल। आई होप्ड दैट दैट वाज ट्रू। ओके, आई होप्ड दैट वाज ट्रू, ठीक है। सो व्हाट इज कंजंक्शन हियर? दैट। ओके, सो दैट इज द कंजंक्शन हियर। सो कंजंक्शन से पहले क्या आ रहा है यहाँ पे? होप्ड। होप्ड, व्हाट इज होप्ड हियर? वर्ब। ओके, अगर कंजंक्शन से पहले क्या आ रही है? वर्ब आ रही है, दैट मीन्स दैट इज नाउन क्लॉज। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू नो हु हैज डन दिस। ओके, सो व्हाट इज कंजंक्शन हियर? हु। ओके, सो हु से पहले क्या आ रहा है यहाँ पे? नो। व्हाट इज नो? वर्ब। ओके, नो क्या है यहाँ पे? वर्ब है। अगर कंजंक्शन से पहले क्या आता है? वर्ब आती है, दैट मीन्स दैट इज नाउन क्लॉज। ओके, let's understand what is adjective clause. Adjective clause is that clause where is noun before relative conjunction. Okay, adjective clause वो clause है जहाँ पे conjunction से पहले noun आती है। Okay, अगर conjunction से पहले noun आती है, that is adjective clause. Okay, let's take some example. This is the girl who stole my pen. Okay, so what is conjunction here? यहाँ पे conjunction क्या है? Who. ठीक है, हु कंजंक्शन है। ओके, और हु से पहले क्या आ रहा है? गर्ल। सो व्हाट इज गर्ल? गर्ल क्या है यहाँ पे? नाउन। ओके, अगर कंजंक्शन से पहले नाउन आती है, दैट इज एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड एडवर्ब क्लॉज। ओके, दिस क्लॉज शोज टाइम, प्लेस, पर्पस, कंडीशन एक्सेट्रा। ओके, एक ऐसा क्लॉज जो टाइम, प्लेस, पर्पस और कंडीशन बताता है, ठीक है, दैट इज एडवर्ब क्लॉज। ओके, let's take some example. Wait here till I turn. Okay, wait here. Here क्या शो कर रहा है यहाँ पे? Place. ठीक है, अगर कोई सेंटेंस, अगर कोई क्लॉज क्या कर रहा है? प्लेस को शो कर रहा है, दैट इज एडवर्ब क्लॉज। ओके, सो ये here यहाँ पे क्या शो कर रहा है? प्लेस। ओके, दिस इज एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट, यू कैन गो वेयर एवर यू लाइक। ओके, सो वेयर एवर यहाँ पे क्या शो कर रहा है? वेयर एवर, वेयर इज शोइंग, वेयर एवर इज शोइंग प्लेस। ओके, जब कोई क्लॉज प्लेस, टाइम, कंडीशन या फिर पर्पस बता रहे हैं, दैट इज एडवर्ब क्लॉज। ओके, सो नेक्स्ट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंस, सेकेंड कंपाउंड सेंटेंस, थर्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं: simple sentence, compound sentence and complex sentence. Okay, so let's understand what is simple sentence. Okay, a sentence that has only one clause is called a simple sentence. एक ऐसा sentence जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्लॉज होता है, ठीक है, जिस सेंटेंस के अंदर सिंगल क्लॉज होता है, दैट इज सिंपल सेंटेंस। ओके, एग्जाम्पल, द बॉय ब्रोक द लेग। ओके, द बॉय ब्रोक हिज लेग। ओके, तो यहाँ पे क्या है? सिंगल वर्ब है और सिंगल सेंटेंस है, दिस इज सिंपल सेंटेंस। ओके, शी वॉश्ड हर क्लोथ्स, यहाँ पे क्या है? सिंगल वर्ब है, वॉश्ड, और सिंगल सेंटेंस है, दिस इज सिंपल सेंटेंस। ठीक है, एक ऐसा सेंटेंस जहाँ पे वन वर्ब होती है और वो सिंगल सेंटेंस होता है, ठीक है, और जिसका एक अपना सब्जेक्ट भी होता है और अपना एक ऑब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट होता है, ठीक है, दैट इज सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंगल वर्ब और single sentence, that is simple sentence. Okay, compound sentence, let's understand. A sentence that has 2 or more independent clauses is called compound sentence. ठीक है, एक ऐसा सेंटेंस जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड क्लॉज। ओके, कौन सा सेंटेंस जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, उसको हम कंपाउंड क्लॉज बोलते हैं। ओके, लेट्स टेक सम एग्जांपल। The sun rose and the fog disappeared. Okay, so compound clause की conjunction क्या होती है? That, and, but, yet. Okay, these type of conjunctions. Okay, like the sun rose and the fog disappeared. Okay, the sun rose. This is independent clause. ठीक है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ये किसी और क्लॉज पे डिपेंड नहीं कर रहे अपने मीनिंग के लिए। ओके, द फॉग डिसअपियर, दिस इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट, इट्स नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्लॉज फॉर इट्स मीनिंग। ठीक है, ये भी अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरे क्लॉज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट, मिशा सॉ मनु एंड शी बिकेम हैप्पी। ठीक है,
So Misha saw Manu. Okay, this is independent clause. This is not depend on any other clause for its meaning. Okay, and she became happy. This is also independent clause. ठीक है, ऐसा सेंटेंस जहाँ पे टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, ठीक है, दैट इज कंपाउंड सेंटेंस. ओके, so complex sentence, let's understand what is complex sentence. A sentence that has a principal clause and one or more subordinate clause is called a complex sentence. Complex clause sentence. Okay, एक ऐसा sentence, ठीक है, जहाँ पे एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और बाकी क्लॉजेस सबॉर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं, ठीक है, दैट इज कॉम्प्लेक्स क्लॉज. ओके, लेट्स टेक एग्जांपल. इट इज अ पिटी दैट यू डिड दैट. ठीक है, दैट यू डिड दैट, सो दैट कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है सेकेंड क्लॉज. ओके, इट इज अ पिटी, दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज, ये इंडिपेंडेंट है अपनी मीनिंग के लिए, किसी दूसरे क्लॉज पे डिपेंड नहीं है. ठीक है, सो इट इज पिटी, दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज. ओके, दैट यू डिड दैट. ठीक है, तो दैट क्या है, यहाँ पे सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है. तो सेकंड क्लॉज किससे कनेक्टेड है, सबॉर्डिनेट कंजंक्शन से, दैट इज सबॉर्डिनेट. ठीक है, और ऐसा क्लॉज जहाँ पे एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल. व्हेन द मदर टाइगर सॉ हर कब्स, ओके, शी बिकेम हैप्पी. ठीक है, तो कॉमा लगा के यहाँ पे अगला सेंटेंस डिपेंडेंट हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ओके, let's understand with fun part. Okay, let's recap. Simple sentence. What is simple sentence, compound sentence and complex sentence? Okay, first we'll understand simple sentence in simple way. Okay, this sentence has only one verb. ठीक है, एक ऐसा सेंटेंस जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वन वर्ब होती है. ठीक है, और एक सिंगल सेंटेंस होता है. ठीक है, दैट इज सिंपल सेंटेंस. ओके, लाइक लेट्स टेक एग्जांपल. आई वेंट टू द मॉल. ठीक है, आई वेंट टू द मॉल, क्या ये सिंगल सेंटेंस है. ठीक है, सिंगल सेंटेंस है और इसमें सिंगल वर्ब है, वेंट. ओके, एक ऐसा सेंटेंस जो सिंगल सेंटेंस होता है और जिसकी एक सिंगल वर्ब होती है, दैट इज सिंपल सेंटेंस. सो विद द हेल्प ऑफ पिक्चर, ओके, वी कैन अंडरस्टैंड दिस इज सिंगल पर्सन. ठीक है, सिंगल मैन. सिंगल मैन मीन्स सिंपल सेंटेंस. ओके, कंपाउंड सेंटेंस. सो कंपाउंड सेंटेंस टू वर्ब्स, जहाँ पे टू वर्ब्स होती है. ठीक है, दैट इज कंपाउंड सेंटेंस. ठीक है, इफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक ऐसा क्लॉज जहाँ पे टू और टू से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड क्लॉज. ठीक है, कंपाउंड क्लॉज में सबॉर्डिनेट क्लॉज नहीं होता है, उसमें टू या टू से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं, दैट इज कंपाउंड क्लॉज. ओके, आई वेंट टू द मॉल एंड वॉट एग्स. ठीक है, सो हियर आर टू वर्ब्स. ठीक है, वेंट फर्स्ट वर्ब, वॉट सेकेंड वर्ब. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टू वर्ब्स है. ठीक है, टू सेंटेंसेज है, बोथ सेंटेंसेज आर इंडिपेंडेंट. ठीक है, आई वेंट टू द मॉल इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, वॉट एग्स दिस इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट. ओके, सो यहाँ पे क्या है, टू वर्ब्स है और दोनों ही इंडिपेंडेंट है. लेट्स अंडरस्टैंड विद द फन पार्ट. यहाँ पे क्या है, हस्बैंड वाइफ. ठीक है, और वो दोनों के हैंड में क्या है, बैग है, ऑफिस बैग. मीन्स दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है. ठीक है, सो इंडिपेंडेंट मीन्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड सेंटेंस. ओके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड अदर सबॉर्डिनेट क्लॉज. ठीक है, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें वन क्लॉज इंडिपेंडेंट होता है और अदर क्लॉज सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है. ठीक है, दैट इज कॉम्प्लेक्स क्लॉज. ओके, लाइक एग्जाम्पल, आई वेंट टू द मॉल. ठीक है, आई वेंट टू द मॉल, दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज. ठीक है, विच इज नियर माई हाउस. सो विच क्या है यहाँ पे, सबॉर्डिनेट कंजंक्शन. तो दूसरा वाला क्लॉज किससे कनेक्टेड है, विच क्या है, सबॉर्डिनेट कंजंक्शन. ओके, सो विच इज नियर माई हाउस, दिस इज सबॉर्डिनेट कंजंक्शन. ओके, सो इसमें क्या है, वन प्रिंसिपल क्लॉज है और सेकेंड वन सबॉर्डिनेट क्लॉज है. सो एक ऐसा सेंटेंस जहाँ पे वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और दूसरा सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर. ठीक है, तो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ एक यूनिट होती है. ठीक है, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट है और उनके साथ क्या है, चाइल्ड है. ठीक है, उनका चाइल्ड है. सो चाइल्ड क्या होता है, डिपेंड होता है अपने पेरेंट्स पे. ठीक है, सो वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड अदर सबॉर्डिनेट क्लॉज, दैट इज complex sentence. Okay, so let's understand. Now we will change sentences into simple sentence. Okay, so
जो सेंटेंस है ब्लू में, ब्लू बॉक्सेस में, इनको हम चेंज करेंगे सिंपल सेंटेंस में. ओके, ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक. ठीक है, तो इसको हम सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे. तो कैसे करेंगे? ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक. ओके, so we will change it like he is too weak to walk. Okay, this is simple sentence. Okay, he confessed that he had committed a crime. Okay, तो यहाँ पे क्या है? He confessed. This is principal clause. Okay, that he had committed a crime. So that conjunction से start है. So दूसरा वाला क्या है? Connected है किससे? Subordinate conjunction से. दूसरा वाला subordinate है. ठीक है, so one principal, one subordinate clause. So ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ठीक है, इसको चेंज करेंगे हम सिंपल सेंटेंस में. तो कैसे करेंगे? ही कन्फेस्ड हिज क्राइम. ओके, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. ओके, नेक्स्ट, व्हेन ही वाज अ चाइल्ड राजू डिड नॉट गो टू स्कूल. ठीक है, तो इसको हम चेंज करेंगे किसमें? सिंपल सेंटेंस में. ओके, सो हाउ वी विल राइट? इन हिज चाइल्डहुड राजू डिड नॉट गो टू स्कूल. ओके, इन हिज चाइल्डहुड राजू डिड नॉट गो टू स्कूल. ओके, नेक्स्ट, चेंज इनटू कंपाउंड सेंटेंस. अब हम सेंटेंस को चेंज करेंगे कंपाउंड सेंटेंस में. ठीक है, कौन से सेंटेंस को? जो ब्लू में राइट किए गए हैं उनको हम करेंगे कंपाउंड सेंटेंस में. ओके, ही इज वीक, ही कैन नॉट वॉक. ओके, ही इज वीक, ही कैन नॉट वॉक, इसको हम कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करेंगे. ओके, और कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? जहाँ पे दोनों ही क्लॉज क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, उनकी कंजंक्शन क्या होती है? मोस्टली and what etc. okay, so कैसे चेंज करेंगे? he is weak and cannot walk. okay, so and conjunction के साथ start है, that is compound sentence. okay, work hard, you sure to succeed. okay, so how will you change it? work hard. so and क्या है यहाँ पे? compound इसमें करेंगे. तो कैसे चेंज करेंगे? work hard. टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हमें बनाने हैं जब आपको कंपाउंड सेंटेंस करना है. ठीक है, सो वी विल राइट वर्क हार्ड एंड यू आर श्योर टू सक्सीड. ओके, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट. ओके, इसको हमें किस में चेंज करना है? कंपाउंड सेंटेंस में. एंड कंपाउंड सेंटेंस के लिए टू क्लॉजेस इंडिपेंडेंट होने चाहिए. तो इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कैसे करेंगे? ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट. ओके, सो टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कंपाउंड सेंटेंस. ओके, सो चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. लेट्स अंडरस्टैंड. जो ब्लू में राइट किया गया है इनको हम चेंज करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में. ओके, ही इज टू वीक टू वॉक. ओके, लेट्स चेंज इट. ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जहाँ पे एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है. ठीक है, सो ही इज सो वीक, दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज. ठीक है, सो अगले वाला क्लॉज किससे कनेक्टेड है? दैट से. So that is the subordinate clause, subordinate conjunction. ठीक है, so that he cannot walk, that he cannot walk, that is subordinate clause. Okay, जब एक principal clause होता है और दूसरा subordinate clause होता है, that means complex sentence. Okay, we have a lot of work to do. So how we will change it? There is a lot of work that we have to do. Okay, that we have to do, that is subordinate clause. Okay, there is a lot of work, that is प्रिंसिपल क्लॉज. ठीक है, तो एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है. दिस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ओके, आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, आई एम सॉरी टू टेल यू दिस. ओके, सो हाउ विल वी विल राइट दिस? कैसे चेंज करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में? आई एम सॉरी टू टेल यू दैट. ठीक है, दैट कंजंक्शन क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है. ठीक है, आई एम सॉरी टू टेल यू दैट आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग. ठीक है, तो ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. That's all for today. See you soon in my next video. Till then, bye. Take care.